Uh, Jai Jinendra, Jai Jin Shasan. Good evening to one and all. On behalf of the Departments of Jainology, University of Madras, and SSS Shasan Jain College, Research Foundation of Jainology, and Jain Heritage Center, Bangalore, I extend a hearty welcome to one and all. A warm welcome to our esteemed speaker and other distinguished guests. As is the tradition, we start our evening with the positive vibes of Darshan Stuti, and I request Ravi Uncle to play the same. दर्शनं देवदेवस्य दर्शनं पापनाशनं दर्शनं स्वर्गसोपानं दर्शनं मोक्षसाधनं दर्शनेन जिनेन्द्राणां साधूनां वन्दनेन च नाचिरं तिष्ठते पापं छिद्रहस्ते यतोदकम् वीतराघमुखं दृष्ट्वा पद्मरागासमप्रभम् नैकजन्म कृतं पापं दर्शनेन विनश्यति दर्शनं जिनसूर्यस्य संसाराद्वान्तनाशनं बोधनं चित्तपद्मस्य समस्तार्थप्रकाशनम् दर्शनं जिनचन्द्रस्य सद्धर्मामृतवर्षणम् जन्मदाहविनाशाय वर्धनं सुखवारिधे जीवादितत्त्वं प्रतिदर्शकाय सम्यक्त्वमुख्याष्टगुणाश्रयाय प्रशान्तरूपाय दिगम्बराय देवाधिदेवाय नमो जिनाय चिदानन्दैकरूपाय जिनाय परमात्मने परमात्मप्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः अनन्तानन्तसंसार सन्ततिच्छेदकारणम् जिनराजपदाम्बोज स्मरणं शरणं मम अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्षा जिनेश्वर न हि त्राता न हि त्राता जगत्त्रये वीतरागात् परो देवो न भूतो न भविष्यति जिनेर्भक्तिर्दिने दिने सदा मेस्तु भवे जन्म जन्माकृतं पापं जन्मकोटि समार्जितम् जन्म मृत्युर्जरामूलम् अन्यते जिन दर्शनात् अन्यते जिन वन्दनात्. Thank you, Uncle. Today, we were to be joined by Sadhvis Siddhi Sudhaji Marasa, Suvidhiji Marasa, and Samitiji Marasa, who are having their Chaturmas in Mylapore, Chennai. But due to unavoidable circumstances, they will not be joining us. But we acknowledge their presence with us through their blessings. Samitiji Marasa, the youngest of the three, has completed her MA in the Department of Jainology during her Chatmas days and is now pursuing her MPhil in the Department of University of Madras. I begin this evening by inviting our guest of honor for the day, Sri Daman Prakash Ji Rathod, a man of few words. Rathod Ji was born in Rajasthan and is currently residing in Chennai, a successful businessman and a socially active person. He attempted the civil services exams in 1981 and later joined the family business. Has devoted himself to the service of Jain sadhus and sadhvis of all sects by regularly performing Vayavach at Erode. His assigned service was to accompany and arrange Gochri for 7 long years. He was appointed to serve on the State Minorities Commission by the government of Tamil Nadu in 1996, served 2 terms of 3 years each. In 1995, he restarted the renowned Tamil monthly Kanayali, which till today is a very reputed literary and cultural magazine in Tamil. He was appointed as the advisor in Handlooms and Handicraft Ministry for his expertise in textiles. Sir has been associated with Jain Mahasangh, Jito, and several schools and colleges for the past 30 years.
He was also associated with the Research Foundation of Jainology and played an instrumental role in starting the Jaina department at the University of Madras. We welcome you, sir, and kindly request you to share your thoughts with us. Thank you, Priyaji. That was slightly gives me a high in the evening, in the sense that have been avoiding all the meetings and most of the functions, being chief guest or guest of honor. I am used to doing our work as a humble worker. Thank you for this introduction. मैं सबका अभिवादन करता हूं, सबको जय जिनेंद्र बोलता हूं. I welcome everybody on board and I greet everybody with Jai Jinendra. Now the whole 10 days or 12 days are spent on a very good concept called heritage. Heritage is nothing but our own past, our antiquity, our ancient culture, our traditions, whatever our generations after generations have followed. It's a kind of relay race in which one baton is passed to another player, and that player passes on baton, and so forth, so on and so forth. Now, tradition, heritage plays an important role in everybody's built up. It's something we have inherited. Like property, we inherit certain traits, certain religions, certain customs, certain fact of the life that shapes our mind and our thought process. And our Jaina religion, that's why we always say it's our fortune that we have taken birth in a Jaina family, because here we can realize God within ourselves by all setting off all our karmas. And this is the kind of heritage we have built up. Our rishis, lakhs and lakhs of rishis, munis have built up in Bharatvarsha. Now, Odisha, the subject which is likely to be talked today, Odisha is a Punya Janmabhumi of our 11th Tirthankar, Sri Ansnath. That's what our Jain legend says. Now, that legend apart, even historically, Lord Parshvanath had presence in Odisha during his Chaturmas. So all these factors add up to great antiquity in Odisha. I will restrict myself to the few minutes about Odisha heritage, because there is a lot to discuss about Udayagiri, Khandagiri, and there are many interesting places which points to centuries, rather thousands of years of presence of Jainism. Especially the kingdom called Kalinga. Now I will see, because another speaker is listed. He is an expert and he will explore more about Odisha Jain heritage. Now here I would like to urge everybody to learn basic philosophy of Jainism. Every Jain should have, it's his prime duty to learn basic philosophy of Jainism. What it teaches, what Anekantwad is, what Aparigraha is, and what Ahimsa is. It's not kind of, by reciting certain hymns and all that, you can understand Jain philosophy properly. The youngsters should take interest, and all the graduates which are being taught very nicely in Jainology department. It has been built up after great efforts by so many eminent personalities like Sripalji, Krishnachandji Chorodia, and all that. Now that department has come, it's a pride of the University of Madras that those graduates who qualify as MA or diploma from University of Madras, you should take the message forward and also make it a point to teach 10 or 5 or 20 or 50, as many youngsters as possible, and encourage them to pursue these studies formally, so that they can be the heritage is passed on from one generation to another generation in its purest form. That's more purity of religion is also most important, because we have to send the right message of 24th Tirthankara and we have a duty towards posterity that we pass on that message. Now, I request all youngsters
that University of Madras is offering such courses, and Priyadarshana is working very hard to make this department known to everybody, and she has been, putting her efforts relentlessly in order to make a success out of it. And I request all youngsters to put your word, all elders to put your word to their people at home, or especially young women, and also people, even graduates, young graduates, to have 2 years course or diploma in Jainology, and see that this flag of Jainism is flying very high in our country. Thank you so much for this opportunity, and I'm really indebted to Jainology department, especially Priyadarshana ji, for this opportunity. Thank you all, and thank you for listening very patiently to me. Thank you, sir. Thank you so much. And we at the department are a testimony to Priya ma'am's hard work and dedication. I request Priya ma'am to acknowledge your views, and then we proceed with the evening. Yeah, thank you, Daman Prakash ji sir. You're like a friend for the department, always there to listen to us and always there to help us. Thank you so much, sir. Your presence means a lot to us. Thank you, sir. Again. Pleasure is mine. Pleasure Yes, is mine. please be with us for the next 3 days, sir. Thank you, sir. Over to Reshma. Yes. Our speaker for today is Dr. Lataji Bothra from Kolkata. She's a resident of Kolkata, West Bengal. Mrs. Lata Bothra has completed her PhD and DLit in Jainology. Her DLit research topic was Bengal mein Jain Purva Tattva. She is an editor of Tirthayara Monthly Jain Journal. She has 14 creative writings to her credit. Ma'am has also edited 48 books and written 67 articles on various Jain topics. Ma'am is currently holding the Jain chair at All India Institute of Oriental Heritage and guiding students for PhD in Jainism. Ma'am has 3 documentary video films to her credit: Shaman Bhagwan Mahavir, Jain Heritage of Undivided Bengal, and Ashtapad, the original source of culture. We welcome you, ma'am, and without further ado, we present to you Dr. Lataji Bothra. Over to you, ma'am. Thank you. जो देवों के देव हैं, जिनको देव और इंद्र पूजते हैं, उन तीर्थंकर भगवान को मैं बारंबार नमन करती हूँ। आदरणीय श्री दमन प्रकाश राठौर जी, सभी आयोजक गण, प्रियदर्शना जी, रविंद्रन सर और सभी सहयोगियों एवं सभी श्रोताओं का मैं अभिनंदन करती हूँ। भारतवर्ष के इतिहास में उड़ीसा एक बहुत ही महत्वपूर्ण भौगोलिक खंड रहा है। यद्यपि आज इसका क्षेत्रफल इतना विशाल नहीं है जितना कि पहले था। प्राचीन काल में उसकी सीमाओं के विषय में डॉक्टर R.D. बनर्जी ने अपने लेख में लिखा है, The vast country on the eastern shore of the Bay of Bengal, which extended from the delta of the Ganges to that of Godavari, was called Kaling in ancient times. प्राचीन काल में बे ऑफ बंगाल को कलिंग सागर कहा जाता था। उस समय औडराष्ट्र, कलिंग, ककोत, उत्कल, दक्षिण कौशल और गंगराडी, इन 6 क्षेत्रों को मिलाकर उड़ीसा बना था। कभी ये एक राजा के अधीन रहे, कभी ये स्वाधीन रहे। कलिंग 3 भागों में बटा हुआ था: दक्षिण कलिंग, मध्य कलिंग और उत्तर कलिंग। किसी समय कलिंग को उत्कल भी कहा जाता था। पुराणों के आधार पर राजा सुद्योमन के 3 पुत्र थे, गया, उत्कल और विदिताश्व। पहले ये तीनों प्रदेश कलिंग में शामिल थे। इस कारण कलिंग के राजाओं को त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि दी गई थी। दक्षिण बर्मा के लोग भी तिलिंग कहलाते हैं, जो त्रिकलिंग का पर्याय है। मनमत
नाथ दास ने अपने किताब में इस बात की पुष्टि करते हुए लिखा है, The principal inhabitants of the lower Burma are called as the Teling even today, a name that have been derived from the word Trikaling. ये कहा जाता है कि श्री रामचंद्र जी वन प्रस्थान के समय उत्कल गोदावरी होकर पंचवटी गए थे। महाभारत में भी हमें कलिंग का वर्णन मिलता है। कौरवों और पांडवों के युद्ध में कलिंग की सेना ने कौरवों के पक्ष में बड़ी वीरता के साथ युद्ध किया था। पुराणों, ग्रीक और चाइनीज सोर्सों के में भी हमें उत्कल का वर्णन मिलता है। कलिंगवासी बाजार व्यापार सुदूर देशों में करते थे। अब वहां उन्होंने अनेक कॉलोनीज भी स्थापित की थी। Glimpses of Indian history में लिखा है, in my opinion, the people of Kaling, who have been proved to be pioneer colonists of India, पेरू एंड मैक्सिको तक उनके उपनिवेश का विस्तार था। उड़ीसा के साथ जैन धर्म का संपर्क 18वें तीर्थंकर अरेनाथ के समय से हुआ है। षष्ठी शलाका पुरुष चरित्र में कहा गया है कि दीक्षा लेने के बाद उन्होंने प्रथम भिक्षा राजपुर में ग्रहण की थी और ये महाभारत में राजपुर को कलिंग की राजधानी बताया गया है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का भी कलिंग से बहुत ही गहरा संबंध रहा है। खंडगिरी गुफाओं के मूल नायक पार्श्वनाथ हैं। रानी गुम्फा की पार्श्ववेष्टनी भगवान पार्श्वनाथ के जीवन प्रसंगों को दर्शाती है। नगेंद्रनाथ बसु ने भगवती सूत्र, क्षेत्र समास और भावदेव सूरी द्वारा लिखित 24 तीर्थंकरों की जीवनी पर आलोचना करते हुए लिखा है कि पार्श्वनाथ ने अंग बंग और कलिंग में जैन धर्म का प्रचार किया था। ताम्रलिप्त बंदरगाह से कलिंग की ओर उन्होंने प्रस्थान किया और कोप कटक में धन्य नामक गृहस्थ के घर से आहार ग्रहण किया। वर्तमान में यह कोप कटक बालेश्वर जिले का कुपारी ग्राम है, जो ईस्वी पूर्व 8वीं शताब्दी में कोपारक ग्राम के नाम से प्रचलित था। भगवान पार्श्वनाथ धन्य गृहस्थ के अतिथि बने थे। इस स्मृति को जीवित रखने के लिए कोप कटक को धन्य कटक कहा जाने लगा। भवदेव के सूरी के पार्श्वनाथ चरित्र में भी यह वर्णन आता है कि कलिंग को यवनों के हाथों से मुक्त करने के पश्चात कुश स्थल की राजकुमारी प्रभावती के साथ पार्श्वनाथ का विवाह हुआ था। जैन कथा साहित्य में भी हमें चित्रसेन पद्मावती चरित्र में उड़ीसा में जैन धर्म के प्रभाव के दर्शन होते हैं। भगवान महावीर के समय भी कलिंग के तार मगध से जुड़ते हैं। जैन हरिभद्रीय वृत्ति के अनुसार कलिंग के शासक महावीर के पिता के मित्र थे और उन्होंने महावीर को अपने धर्म के उपदेश हेतु आमंत्रित किया था। हरिवंश में भी महावीर की कलिंग यात्रा की पुष्टि होती है। आवश्यक सूत्र में तोशाली और मोशाली में उनके द्वारा उपदेश देने की पुष्टि होती है। जैन ग्रंथों के अनुसार प्राचीन काल में तोशाली में अनेक जैन धर्म उपदेशकों को आकर्षित किया था और वहां एक जैन मूर्ति है जिसे तोशालिक राजा की निगरानी में स्थापित किया गया। करकंडू चरियू करकंडू राजा के जीवन का एक आश्चर्यजनक विवरण देता है। हेलो लता मैम, लता जी आपका ऑडियो नहीं आ रहा है। लता मैम,
Reshma some ma'am, disturbance. Reshma ma'am, can you read out from the slide, please? Can you read out from the slide? No, I'm not even getting the slide. I can't see the slide also. Sir, can somebody call her and tell? Yes. Yes, yes. Rajul ma'am will call. We regret the interruption, and till Lata ma'am, we'll be getting her connection shortly. We are also happy to inform you that we are having 2 more speakers for tomorrow and day after tomorrow in this channel, and these details are posted in the WhatsApp group. As we wait for Lata ma'am to join us, we acknowledge the presence of, I think Lata ma'am is back. Lata ji? Lata ma'am? 1 minute, Yes. I will make her just. Okay. हाँ, कुछ इंटरनेट प्रॉब्लम थी, इसके कारण हो गया। ठीक है मैम। हाँ, लता मैम उसको फुल स्क्रीन कर सकते क्या आप, अगर पॉसिबल है? थैंक यू। ठीक है मैम। करकंडू चरियो करकंडू राजा के जीवन का एक आश्चर्यजनक विवरण देता है। यह पार्श्वनाथ के बाद और महावीर के पूर्व कलिंग के राजा थे एवं पार्श्वनाथ की परंपरा के अनुयायी। उत्तराधन सूत्र के 18वें अध्ययन में इनका विवरण आता है और जिसके अनुसार यह जाना जाता है कि कलिंग में राज्य करते थे और तब पंचाल में द्विमुख, विदेह में नमी और कंधार में नगई राजा राज करते थे। करकंडू कलिंगेशु पंचालेशु या दुमोहो नमी राया विदेहेशु गंधारेशु या नगई। और इसके बाद यह भी कहा गया है कि इन राजाओं ने अपने अपने पुत्र को राज्य देकर शमन दीक्षा ग्रहण कर ली थी। इसी प्रकार बौद्ध कुंभकार जातक में भी करकंडू को प्रत्येक बुद्ध के रूप में स्वीकार किया गया है और उनकी राजधानी दंडपुर बताई जाती है। इन समस्त कारणों से यह ज्ञात होता है कि करकंडू के टाइम में कलिंग में जैन धर्म का प्रवर्तन भगवान पार्श्वनाथ से प्रारंभ हुआ था। उस प्राचीन काल में कलिंग में जैन धर्म प्रचलित था। यह महाभारत के इस कथन से भी समर्थित होता है कि अनार्य कलिंग वासियों से दूर रहो, कारण वेद मानते हैं न यज्ञ, यहाँ तक कि देवता भी उनके हाथों से बलि ग्रहण नहीं करते। बौद्धायन धर्म सूत्र में भी कलिंग को अनार्य देश कहकर अभिहित किया गया है। उत्तराधन सूत्र में एक वर्णन आता है कि चंपा नगरी में पलित नाम का एक वणिक रहता था। वह भगवान महावीर का शिष्य था। एक बार वह वाणिज्य के लिए जहाज द्वारा पिथुंड नगरी में गया। इस पिथुंड नगरी का उल्लेख हाथी गुम्फा के शिलालेख में भी और जैन तीर्थ के रूप में भी हमें मिलता है। नंद राजाओं के समय कलिंग मगध साम्राज्य के अंतर्गत था। हाथी गुम्फा लेख की 6वीं और 12वीं पंक्ति में 2 बार नंद राजाओं का उल्लेख मिलता है। ये कौन थे? ये नंद राजा महापद्मनंद थे, जिन्होंने कलिंग को पराजित कर वे विजय स्मारक के रूप में कलिंग जिनको मगध ले गए थे। नंद राजाओं के बाद चंद्रगुप्त मौर्य का शासन आता है, जिनका साम्राज्य विशाल होने पर भी कलिंग उसके अंतर्गत नहीं था। कलिंग से उनके मैत्री संबंध थे, लेकिन उनके पौत्र अशोक ने कलिंग को जय किया और यह युद्ध इतना भयानक हुआ था कि जिसका वर्णन
अशोक के 13वें शिलालेख में हमें मिलता है। जम्बू द्वीप प्रकृति में संप्रतिकालीन कलिंग का उल्लेख है। कलिंग उन्हीं 25.5 आर्य देशों के अंतर्गत था जहां जैन साधु बिना किसी बाधा के विचरण कर सकते थे। अशोक के बाद कलिंग ने अपने आप को बहुत शीघ्र ही उन्हें स्थापित किया। कलिंगाधिपति महाराजा खारवेल का नाम सिर्फ कलिंग के इतिहास में ही नहीं बल्कि जैन इतिहास में भी स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। महाराजा खारवेल ने न केवल कलिंग को भारत में एक महत्वपूर्ण साम्राज्य के रूप में स्थापित किया बल्कि जैन संस्कृति के विकास में भी अपना अमूल्य योगदान दिया। अब तक चले आ रहे मगध साम्राज्य के प्रभुत्व को उन्होंने नष्ट कर दिया था। मगधपति पुष्यमित्र शुंग या बृहस्पति मित्र जिसने शमनों पर अत्याचार किया, अनेक मंदिरों चैत्यों को नष्ट या परिवर्तित किया था, उन पर 2 बार आक्रमण कर उन्हें दंडित एवं पराजित किया। खारवेल का परिचय हमें उदयगिरी के हाथी गुफा शिलालेख के अलावा हिमवंत पट्टावली से भी मिलता है जिसमें कलिंग के इतिहास की जानकारी दी हुई है। इस पट्टावली के रचनाकार आचार्य हिमवंत सूरी थे जो माथुरी वाचना के कर्ता आचार्य स्कंदिल सूरी के शिष्य एवं पट्टधर थे। इनका समय ईस्वी सन 4वीं शताब्दी माना जाता है। महामेघवान खारवेल के शिलालेख से खारवेल के वंश का परिचय थोड़ा ही मिलता है, परंतु इस पट्टावली में उनके वंश का पूरा परिचय हमें मिलता है। इस शिलालेख हाथी गुम्फा शिलालेख की प्रथम लाइन में सबसे पहले नमो अर्हंतानम नमो सब सिद्धानम का उल्लेख है। नमोकार मंत्र की प्राचीनता जो सिर्फ नमोकार मंत्र की प्राचीनता को प्रमाणित नहीं करता वरन खारवेल के जिन धर्मी होने की पुष्टि भी करता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस शिलालेख से प्राप्त कुछ प्रमुख सूचनाओं को सर्वप्रथम आप लोगों के सामने में रखती हूँ। 9 वर्ष तक खारवेल राजा युवराज रहकर शासन संभालते थे और उसके बाद 24 वर्ष की आयु में वो राजा बने। अभिषेक के प्रथम वर्ष में किले के दरवाजे का जीर्णोद्धार कराया था उन्होंने, तालाब और किनारे बंधवाए, बगीचों की मरम्मत कराई, 35 लाख प्रजा का रंजन किया और दूसरे वर्ष में राजा सतकर्णी पर अटैक कर उनको पराजित किया। तीसरे वर्ष में प्रजा के मनोरंजन के लिए उत्सव आदि किए। नंद राजा के 103 संवत में खुदी नहर को तंसुल्य के रास्ते राजधानी के अंदर लेकर आए, प्रजा का कर माफ किया। 7वें वर्ष महारानी दूषिता ने मातृपद को प्राप्त किया। 8वीं लाइन में गोरखगिरी आक्रमण किया। फलस्वरूप यूनानी राजा डिमिट्रियस मथुरा छोड़कर चला गया। 90 वर्ष में महाविजय नामक प्रसाद 38 लाख पर्ण द्वारा उन्होंने निर्मित कराया था। 10वें वर्ष में भारतवर्ष पर चढ़ाई कर उन्होंने अपना वर्चस्व कायम किया। 11वें वर्ष में उत्तरापथ के अभियान में वहां के राजाओं को बहुत दुख दिया। 12वें वर्ष में मगध पर अटैक कर अपने हस्तियों को राजप्रसाद तक ले गए और मगधाधिपति बृहस्पति मित्र या पुष्यमित्र को अपने चरणों में झुकाया। नंद राजा द्वारा ले जाई गई कलिंग जिन की प्रतिमा को वापस कलिंग में लाकर प्रतिष्ठित किया। 13वीं लाइन में है पांड्य राजा को उन्होंने विजित किया और 13वें वर्ष में पवित्र कुमारी पर्वत पर उन्होंने स्तूप गुफाओं का निर्माण कराया जहां पहले से ही जैन धर्म का चक्र सुप्रवर्तमान था। 14वीं लाइन में रानी गुफा का निर्माण तथा वैदुर्य रत्न वाले 4 स्तंभों को स्थापित किया। 75 लाख पर्ण के व्यय से मौर्य काल में उच्छेदित हुए 64 अध्याय वाले अंग सप्तकों का चौथा भाग उन्हें तैयार कराया। उसके बाद उनके पिता बुद्धराज, क्षेमराज और उनका स्वयं का भिक्षुराज का नाम है कि उन्होंने धर्म कल्याण किया।
खारवेल नाम उनका उनका जो वंश परिचय है, ये हमें हाथी इस शिलालेख में तो हमें उनका सिर्फ एक शब्द मिलता है, चेतराज व सब्बधर्मी, लेकिन हिमवंत स्तब्रावली में इसको और विस्तृत रूप से इनका मिलता है कि कुणिक के साथ युद्ध में हारने के पश्चात चेटक ने सलेखना के लेकर अपने प्राण त्याग दिए थे। उनका एक पुत्र शोभन राय अपने ससुर उड़ीसा के राजा सुलोचन की शरण में चला गया। राजा सुलोचन के कोई पुत्र न होने के कारण उन्होंने शोभन राय को कलिंग की गद्दी पर आसीन किया। इसी शोभन राय की 5वीं पीढ़ी में चंड राय के शासन में मगध के नंद राजा ने कलिंग पर आक्रमण कर वहां से जिन मूर्ति को मगध में ले जाकर स्थापित किया। शोभन राय की 8वीं पीढ़ी में खेमराज हुए, जिनके समय में अशोक ने कलिंग में आक्रमण किया था, और खेमराज के पुत्र बुद्ध राय ने कुमारगिरी और कुमारीगिरी नामक के पर्वतों पर 11 गुफाओं का निर्माण कराया था। इन्हीं बुद्ध राय के पुत्र भिक्खु राय कलिंग के शासक हुए थे, जो आगे जाकर जिन्हें महामेघवाहन खारवेल कहा गया। ये महामेघवाहन खारवेल क्यों कहा गया? खारवेल समुद्र के सभी द्वीपों पर उनका वर्चस्व था, इसलिए उन्हें खारवेल कहा गया। और मेघवाहन क्योंकि जिस प्रकार मेघ गरज कर वर्षा करते हैं, उसी प्रकार उनकी सेना शत्रु पर आक्रमण करती थी। और कुछ विद्वानों का कहना है कि वह मेघवाहन नामक हाथी पर बैठते थे, इसलिए मेघवाहन की उपाधि उनको दी गई। यहाँ कुछ बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे मौर्य काले वंशिने च चोयस्थि संति कंतरीय उपादयति, यानी हिमवंत स्तब्रावली में इसके विषय में लिखा है। लता मैडम, आप थोड़े विजुअल्स बता देंगे तो लोग बैठेंगे, नहीं तो अब मैं बस आ रही हूँ उसी में। हाँ। हिमवंत स्तब्रावली में अंग शास्त्रों के उद्धार के संबंध में स्पष्ट लेख के साथ यह भी बताया गया है कि कुमारगिरी पर खारवेल द्वारा आयोजित इस चतुर्विध संघ के सम्मेलन में किन किन शमनों, शमनियों, शावकों और शाविकाओं ने भाग लिया, तथा खारवेल की प्रार्थना पर शमनों ने अवशिष्ट जिन प्रवचनों को भोजपत्र और ताड़पत्र पर लिखा। खुला जिले की एक पहाड़ी भुवनेश्वर से 3 मील उत्तर में है। यह पर्वत 3 भागों में विभाजित है, अर्थात खंडगिरी, उदयगिरी और नीलगिरी। खंडगिरी 123 फुट ऊंचा और उदयगिरी 110 फुट ऊंचा है। मुख्य गुफाएं छोटी बड़ी सब मिला के 117 हैं, जिसमें प्रमुख गुफाएं उदयगिरी में 44 और खंडगिरी में 19 हैं। सबसे पहले हम लेते हैं उदयगिरी की गुफाएं, जिसमें सबसे बड़ी और सबसे उत्तम चित्रकारी से चित्रित रानी गुफा है, रानी हंसपुरी गुफा। और इसमें ये ग्राउंड फ्लोर है, 2 तल्ला है इसमें, और ये फर्स्ट फ्लोर है। और इस गुफा में बहुत से दृश्य अंकित हैं, जिसमें कुछ नष्ट भी हो गए हैं। फिर भी कुछ दृश्यों में एक साधु को दिखाते हैं, जो नगर में जा रहे हैं और लोग अपने घरों से उनका दर्शन कर रहे हैं। घोड़े जा रहे हैं, हाथी चल रहे हैं, प्यादे जा रहे हैं, स्त्री पुरुष हाथ जोड़े हुए साधु के पीछे जा रहे हैं। कहीं कहीं खड़े लोग झुक जाते हैं, फलादी भी चढ़ाते हैं। इस पर्वत में पार्श्वनाथ स्वामी बहुत अधिक प्रतिष्ठित हैं। ये यहाँ पर ये उसका गुफा का कॉरिडोर है, जिसके दरवाजों के ऊपर ये सब चित्र अंकित हैं। ये राजा खारवेल और रानी का चित्र है, जो उपासना करते हुए प्रतीत होते हुए हैं।
ये द्वारपाल है माँ गुफा के दरवाजे पर। मंचपुरी गुफा, यहाँ पर ये लोग खड़े हैं जैसे किसी ऐसा कहा जाता है कि कलिंग जिनकी उपासना कर रहे हैं, और वहाँ सब हाथी भी हैं, अप्सराएं भी हैं और आदमी जन भी हैं। इस गुफा के 5 दरवाजे हैं। चौथे द्वार पर एक लाइन का शिलालेख है। खरस महाराजा कलिंगाधिपतिनो महामेघवाहन सकुले पसीदिनो घलेनम, अर्थात चतुर महाराज कलिंग देश के स्वामी महामेघवाहन या कुड़े पसीदी की गुफा। इसी गुफा के 7वें कमरे में एक और लेख है, कुमार बदूर बस लेनम या कुमार बदूरब की गुफा। शायद ये खारवेल के पुत्र हों, और इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेख है जिसमें श्री अरिहंत के प्रसाद या मंदिर रूप गुफा कलिंग देश के शमनों की बनाई हुई है, ऐसा लिखा है। और यह गुफा कलिंग चक्रवर्ती राजा खारवेल की मुख्य पटरानी द्वारा निर्मित कराई गई, जो राजा लालकस की पुत्री थी, और लालकस हाथी सहित के पौत्र थे। ये वर्णन है इसके लेख में। ये जय विजय केव है जहाँ पे एक वृक्ष की उपासना करते हुए दिखाया गया है। गणेश गुफा, यहाँ भी कुछ दृश्य हैं जो श्री पार्श्वनाथ के चरित्र से संबंध रखते हैं, और इसके पीछे, इस गुफा के पीछे एक गणेश आइडल है जहाँ लोग पूजा भी करते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है हाथी गुफा। हाथी गुफा 50 फुट से 28 फुट है। इसका मुख 11 फुट ऊंचा है। भित्तों पर कुछ शब्द अंकित हैं जो साधुओं और यतियों के नाम हैं। छत की चट्टान पर 17 लाइन का लेख है जो 15 फुट से 6 फुट की माप का है, और यही प्रसिद्ध खारवेल का शिलालेख है जिसके बारे में मैंने अभी पूर्व में बताया था। ये हाथी गुफा शिलालेख है। ये जर्जर हो गया है, इसको पढ़ा नहीं, मतलब ऐसे पढ़ा नहीं जा सकता। इसको बहुत मुश्किल से पढ़ा गया था। करीब 100 साल, इसके खोजने के 100 साल बाद जाके इसको पढ़ा गया। ये सर्प गुफा है। इसके द्वार के बाईं ओर अंदर की तरफ 1ली शताब्दी पूर्व का एक शिलालेख है जो 2 लाइन का है। कम्मस हलरिन राय ज प्रसादो। ये बाघ गुफा, इस पर भी 2री शताब्दी का लेख है। नगर अरंद बरस सबूत नोलेनम, अर्थात नगर जसभूति की गुफा। इसके अलावा हरिदास गुफा, जम्बेश्वर गुफा, छोटी हाथी गुफा आदि उदयगिरी की गुफाएं हैं जिनमें एक एक लेख है। ये बहुत छोटी गुफाएं हैं। अब हम आते हैं खंडगिरी की गुफा में। ये खंडगिरी की तत्व गुफा नंबर 1 है। इसमें एक चित्र है और उस पर शिलालेख है जो 1ली शताब्दी पूर्व का है। ये तत्व गुफा 2 है। इसमें भी एक लेख है जो खंडगिरी के शिलालेखों में सबसे प्राचीन कहा गया है। पद्मुलिकस कुसुमास लेनसम, कुसुम सेवक की गुफा। नमुनि केव, इसके भीतर हमें 10वीं शताब्दी का एक लेख मिलता है जो इस भांति है। ओम श्रीमद उद्योत केशरी देवस्य प्रवर्तमाने विजय राजे संवत 18 श्री आर्य संघ प्रतिबद्ध ग्रह गुल विनिर्गत देशी गणाचार्य श्री कुलचंद्र। इस लेख में स्पष्ट लिखा है कि उद्योत केशरी देव के उन्नतिशील राज्य के 18वें वर्ष में श्री शुभचंद आचार्य यहाँ विराजित थे,
जो श्री आर्य संघ ग्रह कुल देशी गण की आचार्य कुलचंद भट्टारक के शिष्य थे। इसमें ये हमें 9 तीर्थंकरों और शासन देवियों की प्रतिमाएं हमें दिखाई दे रही हैं। और आगे पार्श्वनाथ स्वामी की मूर्ति है। इस गुफा के आगे एक 12 भुजा गुफा है जिसमें चक्रेश्वरी देवी की 12 भुजा की प्रतिमा है। ये अंबिका गुफा है। यहाँ पे 2 ऋषभ देव स्वामी की और एक अंबिका देवी की प्रतिमा है। इसको सिंह गुफा या लल तेंदु केसरी गुफा कहते हैं। पहले खंड के कमरे में जैन तीर्थंकर की मूर्तियां अंकित है, जिसमें सबसे मुख्य श्री पार्श्वनाथ की है और उसमें एक शिलालेख है जिसके अनुसार राजा उद्योत केसरी का नाम आया जिसमें, और संवत 5 लिखा हुआ है। खंडगिरी का नाम कुमार पर्वत लिखा है। यहाँ जैन मंदिर व वापी पहले से थे ऐसा प्रकट है। प्रतिष्ठा के समय यहाँ श्री बसंती आचार्य मौजूद थे। इसके आगे एक झील है जिसको आकाश गंगा भी कहते हैं। ये यवन वॉरियर्स बने हुए हैं बाहर गेट पर। अनंत गुफा। खंडगिरी की दाहिनी तरफ एक लंबा कमरा है जो 23 फुट चौड़ा और 24 फुट लंबा व 6 फुट ऊंचा है। इसमें 4 द्वार हैं। पीछे की भीत पर 7 चित्र अंकित हैं जिसमें स्वस्तिक, त्रिशूल आदि हैं। यहाँ के लेख ईस्वी सन के पहले के हैं। इन शिलालेखों से ये तो पता लग जाता है कि खंडगिरी और उदयगिरी का नाम 10वीं तथा 11वीं शताब्दी तक कुमार और कुमारी पर्वत था। और इन 9 गुफाओं के शिलालेख हैं वो ब्राह्मी अक्षर में हैं और ब्राह्मी लिपि में है और ये गुफाएं हाथी गुफा के आसपास के समय में खोदी गई हैं। कुछ गुफाएं बाद की भी हैं और कुछ हाथी गुफा के पहले की भी हैं, क्योंकि राजा खारवेल से पहले उनके पिता ने भी यहाँ पर 11 गुफाओं का निर्माण कराया था, ऐसा वर्णन मिलता है। और इन गुफाओं के बारे में हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड ईस्टर्न आर्किटेक्चर में जेम्स फर्ग्यूसन ने लिखा है, The whole style of the architecture and sculpture in the older caves here point to a period quite as early as that of the Sanchi Gateway and the small Vihara at Bhaj, and we cannot be far wrong in ascribing most of them at least to the 2nd century before our era. Nor is any trace of Buddhism found among them. ये शिशुपालगढ़ है भुवनेश्वर से 3-4 माइल पर, जो हमें वर्णन मिलता है हाथी गुफा शिलालेख में कि उन्होंने एक जिन प्रसाद का निर्माण कराया था 38 लाख फंड व्यय करके। तो उसी के ये 4 स्तंभ हैं यहाँ पर। इन शिलालेखों में खारवेल के राजत्व के 13 वर्ष का वर्णन हमें मिला, लेकिन उसके बाद का नहीं। क्या कारण है? राजत्व के 12वें वर्ष में उन्होंने समस्त उत्तरापद को जीता था, जिसमें कश्मीर शामिल था। राजतरंगी, जिसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन है, वहां उनका वर्णन हमें मिलता है और उसके अनुसार उनके विजय की आकांक्षा में सिर्फ वीरता ही नहीं बल्कि प्रजा की सुरक्षा की भावना भी थी। और उनके शासन में स्थलचर, जलचर, वायुचर किसी भी प्रकार के जीव नहीं मारे जाते थे। और इसके लिए डॉक्टर R.C. मुजुमदार इतिहासकार हैं जो बहुत बड़े, उन्होंने लिखा है खारवेल के विषय में, खारवेल कोरा विजेता ही ना था, वह सुशासक और शांतिकालीन कलाओं में भी दक्ष था। वह स्वयं एक अच्छा संगीतज्ञ था। नृत्य समारोह जैसे मनोरंजक आयोजनों द्वारा लोक रंजन करता था। उससे शिक्षा
सिंचाई एवं अन्य जनोपयोगी कार्यों पर बहुत व्यय किया। वह एक बहुत बड़ा निर्माता भी था और उसने राजधानी को तोड़नों और भवनों से सुसज्जित किया था। नगर के बीच उसका विशाल महाविजय प्रसाद था। वह कट्टर जैन था। मगध और अंग से लूट के रूप में वह उन मूर्तियों को ले गया जिन्हें कलिंग से कोई नंद राजा लेके मगध ले गए थे। खारवेल ने कुमारी पर्वत में अनेक गुफाएं बनवाई और संभवतः उसके आसपास ही एक विहार भी बनवाया था। इस प्रकार प्राग ऐतिहासिक काल से हमने देखा कि उड़ीसा में ऋषभ संस्कृति का प्रभाव परिलक्षित होता है, जो खारवेल के समय अपनी पराकाष्ठा तक पहुंच गया। यदि महाराजा खारवेल का निष्पक्ष रूप से सही मूल्यांकन किया जाए तो उनका विशाल साम्राज्य और अहिंसा की भावना इतनी उच्च कोटि की थी कि वह सम्राट अशोक से भी साम्राज्य की दृष्टि से और धार्मिक प्रभावना की दृष्टि से महान कहला सकते हैं। और उनकी महानता थी कि भारत के पार्लियामेंट हाउस के हॉल में ये खारवेल का पिक्चर लगा हुआ है, जिसमें वो बैठे हैं, साधु संत हैं और राज्य के और लोग भी वहां पर बैठे हुए हैं। और ये चित्र ये उनकी महत्वता को प्रदर्शित करता है। ये उड़ीसा से जो हमें और जगह से जो मूर्तियां मिली हैं उनके दृश्य हैं ये। खारवेल के बाद उड़ीसा का इतिहास कुछ शताब्दी तक अंधकार में विलुप्त हो गया। उस दौरान जैन धर्म की क्या परिस्थिति था ये हमें नहीं पता चलता। शिशुपालगढ़ की खुदाई के दौरान महाराजा राजाधिराज धर्माधार का एक सोने का सिक्का प्राप्त हुआ जो 3वीं शताब्दी का है और डॉक्टर A.S. अल्तेकर के अनुसार यह संभवतः मुरुन वंश के एक राजा का है जो जैन थे। और खारवेल युग के बाद मुरुन वंशी राजाओं ने उड़ीसा में शासन किया था। ये लोग जैन धर्म का अनुसरण करने वाले थे और उसके बाद धीरे धीरे बौद्ध धर्म लोगों में लोकप्रिय हो गया। गोहा शिव कलिंग के राजा थे जिन्होंने जैन धर्म से बौद्ध धर्म स्वीकार किया और समस्त निर्ग्रंथ जैनियों के कलिंग से प्रताड़ित किया गया उस समय। लेकिन फिर भी वहां पर जैन धर्म का भी प्रज्वलित होता रहा और क्योंकि 7वीं शताब्दी में ह्वेनसांग ने कलिंग में जैन धर्म के प्रभाव को घोषित किया। उन्होंने कहा वहां पर जो अधिकांश जनसंख्या उसमें निर्ग्रंथों की जनसंख्या अधिक है और उन्होंने वहां पर निर्ग्रंथ साधुओं का वर्णन किया अपने लेखों में कि वे हिंसा द्वारा अपने केशों को उखाड़ लेते थे, अपने शरीर का चर्म सूख जाता था, उनके पैर सख्त थे, शरीर सूखी हुई लकड़ी की भांति दिखते थे और जो नदी के किनारे विचरण करते थे। बानपुर के शिलालेख में शैलोद्भव राजा धर्मराज 6वीं-7वीं शताब्दी में के विषय में एक उल्लेख मिलता है कि उनकी रानी कल्याण देवी ने जैन भिक्षु एक साटा प्रबुद्ध चंद्र को धार्मिक उद्देश्य हेतु उपहार में भूमि प्रदान की थी। नवमुनि गुफा में उद्योग केशरी के एक शिलालेख में कुलचंद्र के शिष्य के रूप में शुभचंद्र का उल्लेख मिलता है जो आर्य समूह के ग्रह कुल से संबंधित थे और देशी गण के माने जाते थे। लला तेंदु केशरी गुफा के उद्योग केशरी में एक अन्य अभिलेख में यह वर्णन मिलता है कि यशस्वी उद्योग केशरी ने सुविख्यात कुमार पर्वत पर 5 वर्ष तक विजयपूर्ण शासन किया था और जहां पर विशीर्ण पुष्करों और विनष्ट मंदिरों का उन्होंने जीर्णोद्धार किया था। जैनियों ने उड़ीसा की भाषा वैज्ञानिक विकास में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। जैनियों के अहिंसा का सिद्धांत उड़ीसा के लोक कथा, बाउल चरित्र
और साहित्यिक विधा में भी हमें मिलता है। सल्लादास के ओडिया महाभारत में जनुघंट उपकथा में भी जैन धर्म का वर्णन हमें मिलता है। और यहाँ पर जो उड़ीसा के जगन्नाथ दास के भागवत में ऋषभनाथ की एक कथा मिलती है, जिसमें उन्होंने अपने 100 पुत्रों को उपदेश दिया था, उसका वर्णन है, जो केवल शावक संस्कृति का प्रभाव ही नहीं बल्कि उसमें शावक संस्कृति को उजागर किया गया है। श्री श्री ऋषभ देव उवाच, भी पुत्र माने सावधान, सुने अमर वचन, जे प्राणी जे कार्यमान, निरत करे आचरण, से प्राणी व्यर्थ ऐ संसार, बड़े नरक महा अघोरे। इस तरह भारत का एक बहुचर्चित उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर शमन संस्कृति के आदि पुरुष था ऋषभ देव का मंदिर है। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण साहू के अनुसार उड़ीसा की जगन्नाथ संस्कृति पर शावक धर्म का प्रभाव है। इस मंदिर में एक कोयली वैकुंठ है जो शावक संस्कृति से जुड़े कैवल्य शब्द से आया है। पुरी में आषाढ़ शुक्ल द्वितीया और भुवनेश्वर में चैत्र शुक्ल अष्टमी के दिन रथ यात्रा निकलती है, जो प्रभु के कल्याणकों का दिन है। जैन धर्म में कल्याणक तिथियों में रथ यात्रा परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है, जिसमें तीर्थंकर प्रतिमा को रथ में चैत्य निर्माण कर बैठाकर नगर परिक्रमा कराते हैं। यहाँ पर कल्प वृक्ष की पूजा भी बहुत लोकप्रिय है। बालेश्वर जिले के चंपा ग्राम में भगवान शांतिनाथ की अत्यंत मोहक मूर्ति है। औशपुर में ऋषभनाथ की, और यहाँ पर ऋषभ देव की प्रतिमा को शिव के रूप में सजाकर पूजने का प्रचलन है। क्यूझा जिले के आनंदपुर सब डिवीजन से 9 मील कोट सीडीन ग्राम में 100 से भी अधिक जिन संस्कृति से जुड़ी प्रतिमाएं, यक्ष यक्षिणी और तीर्थंकर प्रतिमाएं विक्षिप्त पड़ी हुई हैं। यह स्थान तोशल राज्य के अंतर्गत था। यहाँ की जिन संस्कृति से जुड़ी सब शिल्प कलाएं, ऐसा लगता है मानो हमारे कानों में अतीत के इतिहास को सुना रही हों। The Jain architecture is nothing but a kind of history, that it is a standing and living record, and it supplies us a more vivid and lasting picture of a nation than history does. जिस प्रकार उड़ीसा के जगन्नाथ चैत्य को हम चक्र तीर्थ कहते हैं, जो ऋषभ देव से जुड़ा है, ऐसे ही अष्टापद के क्षेत्र जहाँ प्रभु ने धर्म चक्र प्रवर्तन किया था, वहाँ का प्राचीन नाम भी चक्र तीर्थ मिलता है। कोणार्क का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर भगवान महावीर की जिनालय के स्थान पर एक विशाल जिनालय के रूप में निर्मित कराया गया। यहाँ के राजा और स्लाइड बदलिए ना जी, स्लाइड बदलिए। मंदिर के बारे में आप बोल रहे हैं ना, वो स्लाइड बदल के। हाँ, कोणार्क का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर भगवान महावीर के जिनालय के स्थान पर विशाल जिनालय के रूप में निर्मित कराया गया। यहाँ के राजा और मंदिर के शिल्पकारों ने कुछ विद्वानों के अनुसार 12 वर्ष और कुछ के अनुसार 16 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन कर इस मंदिर का निर्माण कराया था। मंदिर की शैली, धर्मचक्र, कलश आदि की स्थापना जिन मंदिरों के सादृश्य है, इसको सूर्य मंदिर कहना भी इसे ऋषभ संस्कृति के साथ जुड़ता है। जिस प्रकार प्राचीन दिशा से सूर्य उदित होकर अपने प्रकाश से सभी जीवों में प्राण शक्ति को संचार करता है, वैसे ही प्रभु ऋषभ देव ने सारे जीव जगत में ज्ञान का संचार किया। भक्तांबर में भी लिखा है कि सूर्य का प्रकाश बादलों से ढक जाता है, लेकिन प्रभु के ज्ञान का प्रकाश तीनों लोकों में सदा बना रहता है। उड़ीसा का कोणार्क मंदिर हो या असम का सूर्य पहाड़ या बंग शब्द का अर्थ हो, ऋषभ देव की उपासना सूर्य के रूप में भी प्रचलित रही, और इसी संदर्भ में नीलकंठ शास्त्री का यह उल्लेख महत्वपूर्ण है। जगन्नाथ जैन शब्द है। ऋषभ देव के साथ इसकी समानता है।
ऋषभ देव का अर्थ है सूर्यनाथ या जगत का जीवन रूपी पुष्प। यह प्राचीन बेबीलोन का आविष्कार है। प्रोफेसर सई ने अपने वक्तव्य में कहा था, इसी सूर्य को वासंत विषुवत में देखने से लोगों ने समझा कि अब हल जोतने का समय हो गया। वे वृषभ बैलों से हल जोतते थे, इसलिए कहा जाता है कि वृषभ का समय हो गया। वृषभ राशि के आरंभ का भी यही स्थान है। यह सूर्य या जगत की आत्मा ही परम पुरुष या पुरुषोत्तम है। अतः मिस्त्रीय पुरुषोत्तम और पुरी के जगन्नाथ दोनों जैन धर्म के परिणाम हैं। जिस प्रकार सूर्य प्राच्य दिशा से उदित होता है, ऐसे ही उड़ीसा की ये भूमि ऋषभ संस्कृति का उद्भव स्थल रही। शायद इसीलिए समस्त प्राचीन संस्कृतियों में यह मान्यता रही है कि मानव संस्कृति का प्रारंभ पूर्व से हुआ और उड़ीसा का जैन धर्म से आदिकाल से संबंध रहा है। धन्यवाद। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you for this visual treat, a wonderful presentation. I'd also like to acknowledge the presence of Rajkumarji Sethi, Nirmal Kumarji Sethi, and Shri MKG Jain, who are with us today over here in this forum. We welcome you, sir. And I'd like to hand it over to our HOD, Dr. Priya ma'am, for her concluding remarks. Priya ma'am. Yes, this is not the time to conclude. We have a lot of questions for Lata madam. So you can ask people to respond and ask questions. The forum is open for questions, and Lata ma'am will take a few questions. 3 questions actually. We'll take 3 questions now. If anybody is interested, can raise their hand and we will unmute. Asuki has raised her hand. Asuki ma'am. Yes, please. The presentation was good, but at present, Hindu people have occupied the place. I have recently went and saw. Is there any action taken against that? Can she find out? Lata madam, आप question सुन लिए ना? Lata ma'am. एक बार दोबारा से बोलने के लिए कहिए, मैं पूरा ठीक से सुन नहीं पाई आवाज। Hello. Yes. Asuki, repeat your question. Repeat करिए। Recently, the place has been occupied by Hindu people, and they are not even allowing to show. Is there any action taken against that by the archaeological department or any Jain forum there? Madam, which place are you talking about? Khandagiri in Orissa. हाँ, खंडगिरी। Yeah. Actually, इंडिया में जो हमारे जैन तीर्थ या मंदिर हैं, मोस्टली जैसे जगन्नाथपुरी का मंदिर है या और कोई मंदिर है, सब अभी हिंदू तीर्थ बन गए हैं। तो But even after writing to the आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का एक्शन अभी कोई नहीं आया है, और इसमें जैन संस्थाएं ही कुछ कर सकती हैं। Even after writing to the authorities, no action has been taken. I have heard of it. If you could do something, we will be happy being a scholar and doing research on it. Thank you. आप क्वेश्चन का आंसर देना चाहेंगे कि वहां पर कुछ किया जा रहा है या हो रहा है? नहीं, अभी एट प्रेजेंट कुछ नहीं है, लेकिन उसके बाद आगे देखा जाएगा। इस पे सब कोई मिलकर बैठ करके कुछ कर सकेंगे तो हम चाहते हैं करना। I think this is for all the Jains to make note of and guide us what can be done collectively, what can be done. जगन्नाथ मंदिर के विषय में मैं एक थोड़ा सा 2 मिनट और कुछ कहना चाहती हूँ। जी मैम।
जगन्नाथ मंदिर का जो प्रतिमा है, हो सकता है उसको बहुत से लोग कहते हैं ये कलिंग जिन का प्रतिमा है, और ये हो सकता है कि जो कलिंग जिन को जो मगध ले गए थे और खारवेल ने ला करके वहाँ प्रतिष्ठित किया था, इसका जो इसको सबसे पहले प्रतिष्ठित किया था संबलपुर में, उड़ीसा के संबलपुर में। संबलपुर हीराखंड कहलाता था, और वहां पर इसकी प्रतिष्ठा बहुत लोग कहते गौतम बुद्ध ने की। तो जिन प्रतिमा को गौतम बुद्ध तो नहीं करेंगे, ये गौतम स्वामी ने की थी इसकी प्रतिष्ठा, सबसे पहले संबलपुर में था, और वहीं से इसको मगध ले जाया गया। लेकिन वापस आकर इसकी कहाँ प्रतिष्ठा हुई, ये अभी तक इसमें शोध नहीं हुई है। और जहां तक ये मान्यता है कि जो जगन्नाथपुरी के जगन्नाथ हैं, वही ये प्रतिमा है। Can we take the next question? Sunil Dugard says the Jains will not raise their voice in the national forum. This is not for you, this is for all of us. Okay, madam. So there's another question. In Kannada book Jaina Dharma by Mirji Anna Rao, it is mentioned Puri temple, a Jain statue was present. Is it there now? This question is from Rajamani Nirmal Kumar. निर्मलाकू। और कन्नड़ा बुक में रेफरेंस है कि एक मतलब जगन्नाथपुरी में जैन टेम्पल था, जैन स्टैच्यू था, अभी है क्या, वो पूछ रहे हैं। हाँ, इस पे शोध होना जरूरी है। हम मुझे तो ये लगता है कि वो जैन स्टैच्यूज हैं वहां पर जगन्नाथपुरी में, और वहाँ एक कोयली बैकुंठ जिसका मैंने वर्णन किया था वो भी है, और ये ऋषभ देव की स्टेचू है, और 2 तीर्थंकरों की स्टेचू हैं जिसको वहां पे जिसपे खोल बना के रखते हैं। और दूसरी बात इसका एक और है कि वहां पर जो भोग बनता है वो मुंह पे कपड़ा बांध के बनता है, और उसमें किसी भी जमीकंद का व्यवहार नहीं होता उसमें। तो ये भी इस मान्यता के अनुसार ये भी हमारे इस पक्ष को सुदृढ़ करता है कि वो जैन प्रतिमा है। बट अभी तक मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि इस पे वहां जाके रिसर्च नहीं हुआ है अभी तक। ये मेरी अपनी मान्यता है। Okay, madam. Anybody else who wants to interact with the presenter is welcome. I can request experts if they would like to interact with the speaker. Otherwise, I would like to request Lata madam to very quickly tell us about the presence of Jainism abroad. Just in a few sentences, madam. जो आपका प्रिय विषय है और आपने उस पर काफी शोध किया है. When we met Lata madam in Visakhapatnam, she told me that all the 24 Tirthankars were not born in India. They were born, many were born outside India also. I think it is a little deviating from the topic, but if you can give us a little information, I think the audience will remember you, madam, for this. ये बहुत बड़ा टॉपिक है और इसको समझाने में बहुत टाइम लग जाएगा, 4 बातें कन्विंस करने में, क्योंकि ये स्वस्तिक से जुड़ा हुआ प्रश्न है। जब मैं अष्टपद की खोज कर रही थी उस समय मुझे ये मेरी शोध में ये आया कि, और मैंने सब चीन, मंगोलिया और वेस्ट एशिया और सब जगह मैंने जब खोज की तो मुझे वहां पर जो एविडेंसेस मिल रहे थे और जो वहां के साहित्य में जो कुछ वर्णन भी मिले मुझे, तो मुझे लगता था तब ये है। तब मैंने इसकी खोज की तो जो स्वस्तिक जो हमारे यहाँ बनता है वो 8 लकीरों से बनता है, और सबसे पहला मंदिर जो अष्टपद में बना था, भरत ने बनाया था, सिंह निष्ठा प्रसाद, वो स्वस्तिक आकार पर का था, जिसमें 4, 8, 10, 2 के हिसाब से प्रतिमाएं थी। तो उन्होंने इस तरह क्यों प्रतिमाएं लगाई, ये सोच मेरे दिमाग में आया कि प्रतिमाएं वो 6-6 करके 4 कोण लगा देते हैं, लेकिन वो नहीं किया उन्होंने, 4, 8, 10, 2 के हिसाब से लगाई। तो
प्रश्न ने मेरी जिज्ञासा को जागृत किया और मैंने इस पर खोज की और तब मुझे लगा कि ये नहीं, मतलब कुछ इसमें कोई बात है, क्योंकि जिस तरह अवस्थिति है उसमें, जैसे 2 तीर्थंकर पूर्व दिशा में हैं, तो हम जब उनको नमन करते हैं तो किस तरफ नमन करते हैं? पश्चिम दिशा की ओर। तो इस तरह उसके बाद मैंने जब वहां पे उस हिसाब से सब तीर्थंकरों के लांछन वगैरह की जहां जहां पर है, उसका जैसे बाज का जहां पे प्रचलन है और दूसरे हाथी कहाँ है, और इस तरह मैंने जब इनका सब देखा तो मुझे ऐसा लगा कि ये हमारे सब तीर्थंकर यहाँ के नहीं है, यहाँ सिर्फ 10 तीर्थंकर हुए हैं और बाकी तीर्थंकर भारत के बाहर हुए हैं। मैम, ये जब आप ये 10 तीर्थंकर इंडिया में, तो एट प्रेजेंट जो इंडिया का मैप आता है वो, या ये पाकिस्तान अफगानिस्तान को इंक्लूड करके आप ये अनुमान लगा रहे हैं मैम? ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इधर बर्मा तक इंक्लूड करके। Any other questions? The forum is open. Hello. Yes, sir. Just I wanted to ask one point. In Orissa, hello. Yes, sir. Please go ahead, sir. In Orissa, I was told that Ashok is so much still. Can you switch on your video, Nirmal sir, can you switch on your video, please? No video. I am not having the video. Okay. I will put on this thing only. Okay, audio only. Okay, it's okay. Oh, yes, Yeah, sir. okay, Yes, sir. sir. Okay, sir. Please go ahead, sir. Okay. I was, I have also gone to Kandagiri and Udayagiri, and I talked to many my friends are from Orissa. I am from the concrete field. Many people are there, great people. I wanted to ask. I was told that Rajamani sir, Orissa, please a little louder, sir. We can't hear you, sir. Okay. A little louder, sir. And after Rajamani sir, Nirmal Kumarji Sethi would like to say. Hello. In Kalinga, after the war, Ashoka was so much hated or not considered in Orissa. Is it still like that only in Orissa? And in Kandagiri, Udayagiri, any Ashoka reference is available there? I wanted to know. No. मेरे नॉलेज में नहीं है अशोका का रेफरेंस वहां पर कोई भी। खंडगिरी और उदयगिरी में। Thank you, ma'am. Can we? There's one more question over here. Yes, somebody has asked, any Ashoka related references are found in the caves? Any Ashoka related caves, references found in the caves? No. Okay. नहीं. Okay. Thank you, madam. Thank you. I would request now Nirmal Kumar sir, Nirmal Kumarji Sethi, to kindly respond very briefly, sir. Can you unmute Nirmal Kumarji and spotlight him? The host, please. Lata madam, I've told people to refer to your website for more references to your Ashtapad research and other research. Nirmal sir, please video on kariye. Please Okay, switch on Lata your video. madam. मैंने तो ऑन कर दिया है। हाँ बस आवाज आ रही है? हाँ सर। आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ सर, आ रही है सर। अच्छा, हाँ, आप सबको जय जिनेंद्र, जो उपस्थित जितने भी हैं, और लता जी, आपने बहुत अपना विद्वतापूर्ण भाषण दिया है, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हम लोग आपस में सहयोग करेंगे तो उड़ीसा के बारे में और भी बातें हो सकती है। जहाँ तक ये सवाल है, उड़ीसा में हमारा इतना पुरातत्व फैला हुआ है, उसकी रक्षा हम लोगों ने चेष्टा की लेकिन हुआ नहीं है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जहाँ तक सवाल है, जो उदयगिरी खंडगिरी की जो गुफाएं हैं,
उनके प्रोटेक्शन के लिए आज हम 20-25 साल से बराबर प्रोटेस्ट करते हैं उनको कि वहां पर जो एनक्रोचमेंट है उसको हटाया जाए। कोई भी आर्कोलॉजिकल साइट है वो 10 बजे से लेकर 6 बजे तक खुली रहती है, उसके बाद बंद हो जाती है, कोई भी आदमी अंदर नहीं जा सकता। परंतु ये जो उदयगिरी खंडगिरी की जो साइट है, आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट वाले कभी भी वहां सूर्यास्त के बाद में वहां पर लोग रहते हैं, पंडे लोग रात भर वहां पर रहते हैं उस साइट के अंदर में, तो वो इलीगल है। लेकिन उसको भी ठीक नहीं किया गया। हमने चीफ मिनिस्टर साहब को कई बार कई पत्र लिखे, कई चेष्टा की है कि एनक्रोचमेंट को हटाया जाए, लेकिन हटाने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है वहां पर एनक्रोचमेंट। तो हमें और दोबारा इसके लिए पूरी चेष्टा करनी पड़ेगी कि आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट से कि एनक्रोचमेंट को हटाया जाए। अब दूसरी बात यह है कि पूरे उड़ीसा के अंदर में इतना पुरातत्व फैला हुआ है, उसका डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ अभी तक। तो उड़ीसा गवर्नमेंट को अपने को चेष्टा करनी चाहिए कि डॉक्यूमेंटेशन कराने की चेष्टा होनी चाहिए। और भारत सरकार को अभी हम बहुत जोर से लगे हुए हैं कि पूरे इंडिया में जितना भी जैन आर्कोलॉजिकल साइट्स है, आर्कोलॉजिकल जो ऑब्जेक्ट्स है, उसका डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए कि हमारे सब जितने भी लोग हमारे विद्वान लोग हैं, जितने भी हमारे जैन समाज के लोग हैं और अन्य लोग हैं, उसको इस पर जोर देना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन डॉक्यूमेंटेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। ये होगा तब हमें उड़ीसा की जो संस्कृति को बचाना है तो उसका डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए और प्रोजेक्ट बनना चाहिए। और भारत सरकार को हमें खूब चेष्टा ये करनी चाहिए, तुमने सब जगह बजट बनाते हो लेकिन जैन आर्कोलॉजी की रक्षा के लिए कोई बजट नहीं है। जैन आर्कोलॉजी न तो बंगाल की गवर्नमेंट करती है, न उड़ीसा की गवर्नमेंट करती है। जो स्टेप मदरली ट्रीटमेंट जैन आर्कोलॉजी को मिला है, जैन पुरातत्व को मिला है, वो हमारे लिए बहुत ही दुखप्रद है। हम सब लोगों को मिलके, चाहे पार्लियामेंट के जो मेंबर है हमारे, जो प्रदेश में जो जहां भी है, उनको हमें बोलना चाहिए और अपने जो डॉक्यूमेंटेशन कराना चाहिए। और जो हमारी पुरातत्व की रक्षा के लिए बिल्कुल फंड नहीं दिया जा रहा है, वो हमको कम से कम उसको फंड को देने के लिए हमें चेष्टा करनी चाहिए। और उड़ीसा की जो बातें हैं, मैं जब आपको बताऊं कि आप जैसे भी पुरी के मंदिर में प्रवेश करेंगे, प्रत्येक लेफ्ट साइड के अंदर भगवान आदिनाथ की मूर्ति, पद्मासन मूर्ति वहां पर लगी हुई, अभी भी वहां पर है। और ये आपके लता जी, आपका सोच बिल्कुल ठीक है कि ये मूर्ति जो है, जो अभी जिसकी पूजा होती है, उसके कपड़े वपड़े लगा देते हैं, वो तीर्थंकर की मूर्ति होनी चाहिए, जिस तरह की हमारी अन्य जगह पर है, बद्रीनाथ में भी है और जगह पर है, तो इसकी होनी चाहिए। मैं एक बात, मैं जिस दिन उड़ीसा के इस मंदिर में था, पुरी के मंदिर में, उस दिन देवयोग से मुझे पता चला कि ऊपर के अंदर में जो है 1 तला या 2 तला कहाँ पर है, वो आर्कोलॉजिस्ट लोग आए हुए थे। तो मुझे उन्होंने बताया कि 10, 20, 25 कितनी तीर्थंकर की मूर्तियां उनको ऊपर में मिली है। तो कहने का मतलब है सब चीजें निकली है, लेकिन उसको ठीक तरीके से प्रोजेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि जैन धर्म के अंदर में हमारे आर्कोलॉजिस्ट है नहीं खुद, और जो दूसरे लोग हैं उनको पूरा ज्ञान नहीं है, और ज्ञान भी है तो वो उस चीज को छिपाने की चेष्टा करते हैं। इसी तरह से मैं सूर्य मंदिर में था, उस दिन भी वहां पर प्राचीन मूर्तियां, जैन मूर्तियों की वहां पर बात चली, तो बहुत मूर्तियां ऊपर में, लेकिन वो बंद है और विजिटर्स को देखने नहीं देते। तो मेरे कहने हैं कि हम जैन लोगों को थोड़ी जागरूकता आनी चाहिए और हमारी संस्कृति को बचाने के लिए हमें पूरी चेष्टा करनी चाहिए। हमारे उड़ीसा के काम में हमारे जो ऑल इंडिया दिगंबर जैन महासभा के हमारे कार्याध्यक्ष हैं राजकुमार जी सेठी, महामंत्री है, वो पूरा ध्यान दे रहे हैं। हमारे कमल जैन है वहां पर आपके कटक में, वो भी पूरा ध्यान दे रहे हैं। पहले शांतिलाल जी थे, वो ध्यान दे रहे हैं, लेकिन सफिशिएंट नहीं हुआ, जो पूरा जितना होना चाहिए नहीं होना चाहिए। अब हम लता जी की बातों को सुन करके हमारे उत्साह है। लता जी, प्राचीन चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए हम चेष्टा करेंगे और आपका गाइडेंस भी हम लेंगे। और प्रियदर्शना जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ उड़ीसा के बारे में, ये जो बातें की है बहुत साहब, जय जिनेन्द्र, आपको याद होगा 2005 के दिसंबर में दिल्ली में आपसे मैंने उड़ीसा के बारे में कुछ बात की थी। पता नहीं आपको याद है कि नहीं? नहीं, याद है लता जी, याद है। मैं कान पकड़ के माफी मांगता हूँ आपसे कि हमने आपस में पूरा आगे बात नहीं करी है, अब करेंगे, लेकिन मेरे मन में था उस दिन से ही, मेरे मन में था। बात आपको बताऊं, उड़ीसा में बहुत जगह, बहुत घरों में मूर्तियां हैं, घरों में, और जिसको देवी के रूप में पूजा जाता है। हाँ, ये मुझे आज से करीब 22-23 साल पहले एक व्यक्ति आए थे जिनका नाम था चित्तरंजन सेन, गवर्नमेंट ऑफिसर थे उड़ीसा के। उन्होंने आकर के मुझे सबसे पहले
ये जानकारियां दी और वहाँ जगन्नाथ मंदिर के विषय में बताया। मेरे से उन्होंने कुछ सवाल पूछे जिनका उस समय मैं जवाब नहीं दे पाई थी कि अशोक के टाइम में कौन उड़ीसा के राजा थे, कैसे थे, किस धर्म से संबंधित थे, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत कुछ इस बारे में जानकारी दी। और उन्होंने कहा उनके घर में भी एक मूर्ति है, जैन मूर्ति, जिसको उनकी माँ देवी के रूप में पूजा करती हैं। देखिए खारवेल का जो शिलालेख है उसके अंदर में क्या लिखते हैं कि जब उसने जो विधान किया था वहां पर इंद्रधनुष विधान जब किया उस समय सहस्त्र दिशाओं से 1 लाख से भी ज्यादा अपने निर्गंत मुनि वहां पर उपस्थित हुए थे। हाँ, 1 लाख से भी ज्यादा, ये उसमें खारवेल की शिलालेख में है। और हिम्मत पट्टावली में उनके नाम है, सारे आचार्यों के नाम हैं बड़े बड़े, हाँ। जो उस समय वहां उपस्थित थे वहां पर। हाँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट मतलब दस्तावेज है हमारे पास। हाँ। और इसकी सबसे हमने बड़ी बात है कि हम लोगों ने अपने मतलब जब मैं बीए या एमए किया तब तक मुझे स्कूल के कोई पाठ्यक्रम में खारवेल के विषय में नहीं आता। ये बहुत दुखद बात है, इतने बड़े सम्राट के विषय में हमारे यहाँ इतिहास में पढ़ाया भी नहीं जाता। यही बात है। और वो जो गुफा के इंस्क्रिप्शन है उसके ऊपर में छत लगाने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम 15 साल से लिखते आ रहे हैं, 15-20 साल से। अब जाके शायद थोड़ा सा उसके ऊपर में कुछ छत वगैरह किया है, नहीं तो पानी आता था। खराब हो चुके हैं, जिस समय मिले थे उस समय भी बहुत जर्जर अवस्था थी और अभी उनकी अवस्था और भी खराब हो गई है। सारे पुरातत्व की सब जगह है हमारी अवस्था खराब है। उसका मेन कारण ये है, मैंने एक बात अभी जैन गजेट में हमने लिखी है कि जैन समाज को रोना नहीं आता। हम लोग रोना नहीं जानते, हमें अपनी चीजों को प्रोटेस्ट करना चाहिए। हम एक चिट्ठी नहीं लिखते एएसआई को, एक चिट्ठी नहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिखते, तो कैसे होगा? हमें सब जगह जहां जहां भी प्रॉब्लम है हमको राइटिंग में चिट्ठियां भेजनी चाहिए, प्रोटेस्ट करना चाहिए। तो ये हमको सीखना चाहिए, ये हम सीखते नहीं है। तो इसलिए मैंने कहता हूँ दिगंबर जैन समाज के अंदर में मैट्रिक से पढ़े हुए ज्यादा लोग नहीं है हमारे जैन समाज में, समझिए ना। और ज्यादा इलिटरेट लोग हमारे जैन समाज में, जो दो चार चिट्ठी लिखना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नहीं जानते, वो समाज क्या करेगी बताइए? ये स्थिति है। सारे पूरे भारतवर्ष के अंदर में जैन पुरातत्व फैला हुआ है, लेकिन उसको बचाने के लिए जैन समाज कोई चिट्ठी या उसकी कोई चेष्टा नहीं करती। निर्मल कुमार हम सर, लोग बहुत उदासीन है, हमारा समाज इस क्षेत्र में, बिल्कुल इस क्षेत्र में बहुत उदासीन है हमारा समाज, जिसको जागृत करने की अवस्था है। और प्रियदर्शना जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने ये जो हेरिटेज के लिए ये जगह जगह जर्नलिज्म इन उड़ीसा, बंगाल, इसके विषय, इन सब्जेक्ट के विषय में ये उन्होंने प्रोग्राम रखा, वेबिनार रखा, तो इसके लिए मैं उनकी बहुत आभारी हूँ और बहुत धन्यवाद देती हूँ उनको। अरे प्रियदर्शना जी 5 मिनट राजकुमार जी सेठी को बोलने दीजिए। हाँ सर, उनको बुलाना है सर, उनको बुलाना है। हम ये चाहते थे सेठी साहब और लता मैडम और राजकुमार जी, जैसे संलेखना के लिए कोर्ट में केस हुआ था और सब जैन लोग रोड पर आ गए थे और संलेखना से रिलेटेड इतना लिटरेचर भी डेवलप हुआ था, तो ऐसी एक मुहिम अगर जीतो और महासभा और सभी ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर के चलाए और जैन लोग बाहर आए और हम इसके बारे में और ऐसे सेमिनार्स करें और ऐसे मतलब स्पेशल लेक्चर्स करें और लोगों तक लेके जाएं, तो हमारा ये डिपार्टमेंट और शासन कॉलेज का डिपार्टमेंट रिसर्च फाउंडेशन आप सबके साथ है। मैं मेरे डिपार्टमेंट के 150 स्टूडेंट्स की तरफ से आपको ये आश्वासन देती हूँ कि आप हम सबको बताइए, मार्गदर्शन करिए और हम लोग सब आगे से आगे इस बात को लेके जाएंगे। और आप जो काम कर रहे हैं, वी वुड लाइक टू स्ट्रेंथन योर हैंड्स, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नहीं तो हमारे बच्चों तक ये कल्चर नहीं जाएगा और पता नहीं और क्या क्या आगे हो जाएगा सर। सो राजकुमार जी सेठी को बुलाइए। रेशमा जी, we call upon Rajkumar ji Sethi, who is present with us. Sir, request the host to welcome, unmute sir. him. हाँ, अनम्यूट करिए। हाँ, आप अनम्यूटेड है सर। आप नमस्कार, जय जिनेंद्र। जय लता जिनेंद्र। जी, राजकुमार जी आप पधारे, आपका स्वागत है। लता जी जय जिनेंद्र। आपसे मैं 2002 में जब भगवान महावीर का 26वां जन्म जयंती महोत्सव मनाया था, तब हम लोगों ने साथ में मिलकर कार्य किया था और हम लोगों ने नेताजी इंडोर स्टेडियम में भी एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया था, जिसमें हजारों की संख्या में चारों समाज के लोगों ने भाग लिया था। और आप जब
कैलाश पर्वत का भ्रमण करके आई थी, उस समय भी आपसे मेरी चर्चा हुई थी। और तिथियर जो पत्रिका है वो आप बहुत अच्छा निकालती है, और उसके बारे में आपने बंगाल के बारे में और पुरुलिया जिले और बांकुड़ा के बारे में जो लेख लिखे हैं वो सारे के सारे बहुत ही उपयोगी हैं, और आपने हर एक उसका एक एक दृष्टिकोण से उसको समझा के लिखा है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उड़ीसा के अंदर में भी आपने इतना काम किया है, क्योंकि आप जैन धर्म की प्राचीनता और धरोहर के लिए लगातार जुड़ी हुई है, और पिछले 40 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ आप इस कार्य को निरंतर कर रही है। लता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उड़ीसा के अंदर में अभी जो वहां पर हमन कुंड बना दिया गया है अपनी खंडगिरी के अंदर में, इसके जो 12 भुजी गुफा के सामने में, उसमें अग्नि जलाई जाती है। अग्नि से जो धुआं उठता है उससे सारी मूर्ति, सारी गुफाएं और जो हमारा पुरातत्व है नष्ट हो रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले वो हवन कुंड तो बंद होना चाहिए, और चीज हो या न हो, अग्नि का जो वहां पर प्रसार हो रहा है उसकी रोक बहुत जरूरी है। हमें प्रयास करना चाहिए या इस पर रोक लगनी चाहिए। ये बहुत ही, इसके अलावा उड़ीसा के अंदर में हम लोगों ने जो सर्वेक्षण किया है उसमें 120 स्थानों में हम लोगों ने प्रतिमाओं की जानकारी प्राप्त की है। कोरापुट जिले के अंदर में बहुत बड़ा अपना जैन पुरातत्व है, वो आदिवासी एरिया है, और वहां पर घर घर के अंदर में अपनी जैन प्रतिमाओं को अलग अलग रूप में पूजा जा रहा है। अभी तक भी प्रतिमाएं सारी अक्षत है वहां पर कोरापुट जिले के अंदर में। तो उड़ीसा जैन धरोहर का सबसे बड़ा खजाना है। उड़ीसा के बारे में अभी बालेश्वर जो हमारे बंगाल की सीमा पर है, वहां पारसनाथ की 4 प्रतिमाओं के बारे में जानकारी मिली है कोरोना काल के अंदर में। चारों प्रतिमाएं बिल्कुल सही है और जरा भी खंडित नहीं है। उसके लिए अभी हम लोग जाने की चेष्टा कर रहे हैं, जा नहीं पाए हैं। कमल जी धनावत से मेरी बातचीत हो रही है, उन्होंने वहां पर अपना आदमी भी भेजा है और वो आदमी भी जाकर के आया है, पर अभी तक ग्रामवासी उस प्रतिमाओं की रक्षा के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। वो लोग बोलते हैं हम लोग इसी रूप में रखेंगे, कोई रूप में चेंज नहीं करेंगे। तो बहुत जगह बहुत सी असुविधाएं भी आ रही है। लता जी, आपने इस प्रकार से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट का जब तक सहयोग नहीं होगा तब तक ये कार्य थोड़ा मुश्किल है। सुजाता जी जो है उड़ीसा के अंदर में जो अपने उत्कल यूनिवर्सिटी ऑफ जो इसकी जैन की उसके अंदर में कार्य कर रही है, वो बराबर सहयोग कर रही है। बीके रथ जो ASI थे पहले, उन्होंने भी पूरा सहयोग किया था, पर पता नहीं क्या बात है, हम लोग जब भी उड़ीसा में कार्य करते हैं कोई न कोई अड़चन आकर के वो कार्य आगे बढ़ता नहीं है। मैं चाहता हूं लता जी, आपने जिस तरह से अपना समर्पण किया है जैन धर्म के लिए, आपने जितना कार्य किया है, आप इस कार्य में हमें पूर्ण रूप से सहयोग दें और हम उड़ीसा के अंदर में जो हमारी धरोहर है उसकी हम रक्षा कर सकें। ये मेरी बहुत बड़ी भावना है। लता जी, आपको याद आया होगा, आप मेरे निवास स्थान पर भी लॉर्ड सिन्हा रोड में भी आई हुई है और आपसे हमने कई बार चर्चाएं की है, आपको ध्यान में आ रहा होगा। राजकुमार जी, समय हो रहा है, बिल्कुल याद समय हो रहा है सर। आप कुछ और कहना चाहते हैं तो 1 सेकंड में कह दीजिएगा सर। बस समय बहुत हो रहा है, जय जिनेंद्र, समय बहुत हो रहा है, और कुछ आप कहना चाहते हैं तो। लता जी, आप कुछ याद करिए, हमारा जो आपसे चर्चाएं हुई थी उसके बारे में आपको ध्यान आया होगा। नहीं सर, और कुछ रिसर्च रिलेटेड हो तो ठीक है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें ग्राउंड रियलिटी बताई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें ग्राउंड रियलिटी बताई। आशा है आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा, हमारी ये कोशिश। प्लीज अनम्यूट हिम, ही इज सेइंग समथिंग, प्लीज अनम्यूट हिम। He has muted himself. सर हाँ, it's okay Sir, then. Yeah. Thank you Nirmal ji Sethi, Rajkumar ji Sethi for this wonderful feedback and जब हमने ये प्रोग्राम स्टार्ट ही किया था तब प्रिया मैम का उद्देश्य यही था कि ये जैन यूथ के पास पहुंचे, ये this heritage which we are losing every day. The target audience for us were the Jain youngsters who could relate to this and then take up an initiative to save and protect it. So I think a lot of credit goes to Priya ma'am for taking this initiative. हम लोग को तो ये इतना कुछ है पता ही नहीं था, तो I think thanks to Priya ma'am for this.
and we'll go back to Priya ma'am for the concluding remarks. Priya ma'am. Yes, लता जी बहुत 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 धन्यवाद आपका. आपने हमारे इनविटेशन को स्वीकार किया और आपका एक्सपर्टीज वेस्ट बंगाल पर है. आप उस पर प्रेजेंटेशन करना चाहती थी, लेकिन चूंकि कल शुभा मजूमदार जी he will be coming and talking about West Bengal. Please, all of you join us. It will be a very interesting presentation tomorrow. And that is the PhD work of Dr. Shubha Majumdar. He's a young man. He's just 37 of age. And he's done wonderful work on West Bengal. And please come and watch tomorrow. You will literally खून के आंसू आपको आएंगे, एकदम आपकी आंखों में आंसू आएंगे. इतना वेस्ट बंगाल में इतना जैन धरोहर आपको देखने को मिलेगा. And he has prepared more than 100 slides. So we invite you all for the treat tomorrow on West Bengal. And please, all of you join hands together. Together we can save our heritage. One sparrow cannot make spring. Okay, we want all organizations, whether it is GITO or whether it is a Department of Jainology or whether it is a research foundation, Shasan College or Jain Heritage Centers, collectively we all need to do things and approach the government. We have to have a strategy. We have to strategize things and collectively we have to move to protect all the heritage sites and our heritage that is spread over the length and breadth of India. So all the youngsters, all the youth, and we would request organizations like Jaina and GITO and everybody, every Jain is an institution in himself or herself. If they all take this up, then together we can do something to preserve our lost heritage. And as Kanak Ajitdas sir told, you know, it's a hopeful future. It's a struggling present and a glorious past. So we need to protect it. We need to conserve it. I would request all the department students, whether it is Shasan College and Madras University, to come forward and do research on these sites and help the organizations in documentation and approach the ASI. Today, Nitin gave us a lot of tips how to go about protecting lost heritages. He's already a field master. We should learn from Nitin and our people how to go about protecting our heritage. We can call for a separate session on this, and we request all the people who are working in this site, in this area, to guide youngsters like us. So I come from the School of Philosophy and Religious Thought, and we teach the papers of Jain history in Tamil Nadu, Jain literature and Jain history. So we cannot do much related to archaeology because we have a separate department of ancient history and archaeology. I will request my students to take up masters in archaeology, become archaeologists, go to field work and integrate Jainism and archaeology. The students of Jainism do not know archaeology. The students of archaeology do not know philosophy. So when they come to these sites, they interpret it the way they understand it. So it is our duty to inform the archaeology students about the deep Jain philosophy. I remember when Dr. Snehrani Jain had come to Chennai and made a presentation on deciphering the Indus script. We had 40 students from the history and archaeology department, and they said, everything you will have to look at through Jain lens. Don't you have any other way to look at history and archaeology? This is their response. So they will not easily take down the philosophy. I will in turn tell the Jain students to take up philosophy and archaeology, integrate it and do research and publicize your work. So this is one way I would like to respond to Lataji's mehnat and to everybody's mehnat, the hard work put in by the presenters. And we look forward for the other last two presentations for this series. Over to Reshma. Thank you, presenters. Thank you, chief guest. Thank you, Rajkumar ji, Nirmal Kumar ji, and all audience members. Over to Reshma. Priya ma'am, there's one more question come. Can we put it up across to Lata ma'am? Time is up. You can ask Lata madam. Otherwise, time. Lata ma'am, एक question है आप लेंगे? तो question ये है कि are there any line drawings of Panch Parmeshti at Hathi Gumfa? हाथी गुम्फा में पंच परमेष्टि के रिलेटेड कोई लाइन ड्राइंग्स है क्या? वो है क्वेश्चन. अभी तो नहीं ध्यान आ रहा है मेरे को, इस समय नहीं मैं बता पाऊंगी. जी मैम. जहाँ तक नहीं है. ओके मैम. जी मैम. Thank you, audience members, for all the responses. Thank you very much. In the chat box, we have put the translation of Lata madam's presentation. She spoke in Hindi, but Lata madam यहाँ पर तमिलनाडु में बहुत लोग हैं जो हिंदी नहीं जानते हैं, तो उनकी सुविधा के लिए हमने आपके स्पीच को लगभग थोड़ा बहुत इंग्लिश में डाला है. बाकी लोग रिसर्च करेंगे. धन्यवाद मैडम.
Thank you very much, Lata ma'am. Thank you very much, all the other esteemed guests. Thank you very much to our guest of honor, Daman Prakash Ji Rathod. If he's with us, he can give us a final feedback on today's session. I don't think he's there. And again, once again, thank you from all of us from our side to our speaker. It was a lovely interactive session where so many queries were raised, and hopefully this will create a greater awareness among the Jain youth in preservation of Jaina heritage. Thank you, ma'am. And now I request Ravi uncle sir to finish off this evening, to wind up this evening with our Mera Dham Shuddhatam song. Thank you, everybody. मेरा धाम शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम, मुक्तिपुरी है मेरा धाम, मिलता जहाँ पूर्ण विश्राम। शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम, मुक्तिपुरी है मेरा मिलता जहाँ पूर्ण विश्राम। जहाँ भूख का नाम नहीं है, जहाँ प्यास का काम नहीं है, खांसी और जुकाम नहीं है, आदि व्याधि का नाम नहीं है। सत शिव सुंदर मेरा धाम, शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम, शुद्धात्म है मेरा नाम। स्वयं पर भेद विज्ञान करेंगे, निज आत्म का ध्यान करेंगे, राग द्वेष का त्याग करेंगे, चिदानंद रस पान करेंगे। सब सुखदाता मेरा धाम, शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम, मुक्तिपुरी है मेरा धाम, मिलता जहाँ पूर्ण विश्राम। जय जिनेंद्र।